that the soul is situated over here, and you have to remember the point of light, just like a star in the sky, in the middle of the head, forehead. So, middle of the head. In the morning, you have to practice for half an hour. And even in the daytime, after every hour, after every 2 hours, while sitting in the classroom also, you can, for 5 minutes, you can practice. You have to keep your eyes open. In the Srimad Bhagavad Gita, one verse is there, Sampreksha. Sampreksha means you have to keep your eyes open. It is not a Hadyo, it is a Rajyo. So, the second thing is that how to connect with the Supreme Power. I have given you one message, not other satsanga are giving, not other Maharaj, Baba they are giving. I have given one unique message that he has incarnated on the earth in an ordinary human being. So how to identify him? You have to identify him only by the knowledge. Whatever knowledge he is giving, by that knowledge only you can accept that he is God and no other. Because Jesus Christ has come. When Jesus Christ come, he has given the knowledge. But the people at that time, they didn't accept that knowledge. The society didn't give him value and they crucified him. Now what happened? Now after he died, now 300 crores people, half of the population of the world are following Christianity, are following Jesus Christ. In a similar manner, at the end of the world, at the end of the Kali Yuga, Supreme Soul incarnates on the earth in an ordinary human being, then only we can connect our soul with him. I have seen you, so I can remember you. But I have not seen you, then I cannot remember you. The people are saying since last thousands of years that remember God. Even Muslims are saying that remember Allah, but they have not seen Allah. How they can remember? Christians are saying that remember God, they have never seen God. So the God manifests in an ordinary human being. The incorporeal, he is incorporeal in unmanifested form. When it incarnates in the manifested form, then only we can remember him, just like a mother remembers her child when child goes to America. In the similar manner. So you have to do the 7 days course. You will come to know that who is that personality. And then you can connect. That is the supreme power we are saying. That message we are giving to everybody. Okay? Thank you. Shanti Guruji. Om Shanti. I am not a Guruji. I am just Nimitta Matra. The meaning of Nimitta Matra is that the God has only given me duty to give his message to you. हाँ, बोलिए। मेरा प्रश्न महाभारत से है। हाँ जी। जैसे श्री कृष्ण जी के विचार पर अर्जुन ने अपने रिलेटिव से अश्वत्थामा, पितामह भीष्म इन सब से युद्ध किया और वो विजय भी हुए। लेकिन कलयुग में हमारे लिए हम ही कृष्ण हैं, हम ही अर्जुन हैं। लेकिन हमारे जो विरोध हैं, ये ना तो हमारे परिवार वाले हैं, ना दुनिया वाले हैं। हमारा मन ही हमारे विरोध रहता है। तो हम अपने मन को अपने काबू में कैसे करें? क्योंकि साइलेंस आपने कहा कि पावर है, लेकिन कभी कभी हम इतने भी साइलेंस हो जाते हैं कि वो हमारे ही बहुत नुकसानदायक हो जाता है। नहीं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इन्होंने बताया कि हमारा मन, हमारी आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु है। इन्होंने क्या बोला? आत्मा ही सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। तो इन्होंने बोला इसको काबू में कैसे करना है, ये क्वेश्चन है ना आपका, हाउ टू कंट्रोल इट। सो I told you in the lecture also, in the seminar also, that what practice you have to do. आपको बार-बार सवेरे से लेकर शाम तक, अर्ली मॉर्निंग जब उठते तभी भी आपको, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बता दूँ, आपको बार-बार एक प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस ऐसा है, मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड एज उत्तमांग। इसको बोलते हैं उत्तमांग। ये 5 सेंस ऑर्गन्स, दीज आर बिलो दिस उत्तमांग। राजा जो किंग होता है वो टॉप में बैठता है। सो द आत्मा इज द किंग, ही इज सिटिंग एट द टॉप। सो दिस इज कॉल्ड एज आज्ञा चक्र। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to concentrate
your thoughts of the mind at this one point, and you have to remember in the middle of the forehead, the point of light, just as a star is there in the sky. You have to remember that star here, and you have to concentrate your mind. मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उसको थॉट्स के पीछे आपको भागना नहीं है. आपको एक ही थॉट करना है कि मैं आत्मा स्टार हूँ. आप जो दूसरा बोला कि साइलेंस, टू मच साइलेंस, उसको बोलते हैं नील में जाना. नील में जाना मतलब विदाउट एनी थॉट. मैं आपको एक थॉट दे रहा हूँ ना, माइंड का काम है थिंकिंग करना. मैं आपको एक थॉट दे रहा हूँ कि मैं आत्मा स्टार हूँ, और जो नील में जाना होता है उसमें कोई थॉट नहीं रहता है. दैट इज रॉन्ग थिंग, दैट इज रॉन्ग थिंग. और एक होता है कि एक ही थॉट है, एक 100% थॉट. जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे मैं आत्मा स्टार हूँ, इस एक थॉट से आपके अंदर की जो सोल कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा के अंदर की जो पावर है वो जागृत हो जाएगी, और उससे जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भागने लगेंगे, और जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, डिवाइन क्वालिटीज आत्मा की, वो वापस आने लगेगी. कौन सी क्वालिटीज है? आनंद, प्रेम, सुख, शांति, ये सब कुछ वापस आएंगे. आत्मा की अष्ट शक्तियां वापस आएगी. आत्मा की अष्ट शक्तियां सहन करने की शक्ति, पावर ऑफ टॉलरेंस, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, डिसीजन मेकिंग पावर, परखने की शक्ति, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, समेटने की शक्ति, ये सारे पावर्स वापस आ जाएंगे. और आप सवेरे से लेकर रात तक हर 1 घंटे के बाद अलार्म क्लॉक सेट करके मोबाइल में 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हो. अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के आधा घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके बाद कोई स्पिरिचुअल क्लास सुन सकते हो, जिससे पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे. पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो जो निगेटिव कचरा है, गार्बेज है, वो निकल जाएगा. तो रोज की रोज चार्जिंग करनी पड़ेगी आपको. और रात को सोते समय भी 15 मिनट्स आपको आत्मा का अभ्यास करना है, और सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना है. सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ने के लिए मैंने आपको मैसेज दिया कि दैट सुप्रीम पावर हैज कम ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. सो यू कैन आइडेंटिफाई हिम बाय वे ऑफ गेटिंग द नॉलेज, सीकिंग द नॉलेज. So you have to take 7 days course. You will come to know that how he has come and what knowledge he is doing, he is giving. So after taking the knowledge only you can remember him. Okay? And that will control your mind. And the second thing is the vairagya. श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बोला है अभ्यास न तो कौनते ये वैराग्य न चंद्रियते. एक तो योगाभ्यास कर, अभी जो बताया वो योगाभ्यास है, और दूसरा है वैराग्य. वैराग्य मींस डिटैच. हम हमारे फ्रेंड्स के साथ जब कनेक्शन में आते हैं तो हम अटैच रहते हैं. अगर हम माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच होंगे, उनके साथ रहेंगे, हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहेंगे, तो हमको दुख आएगा नहीं. हमको दुख आता है क्योंकि अटैचमेंट की वजह से आता है. मोह सकल व्याधि कर्मूला. जो अटैचमेंट है ये सभी दुर्गुणों का जन्म देता है, सभी दुर्गुणों को जन्म दे देता है. ओके?